is defined as differentially reinforcing successive approximation. इसमें एक वर्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूज हो रहा है. सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन किसे हम कहेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं. अगर अम, मैंने किसी बच्चे को एप्पल कहना सिखाना है कि वो एप्पल कह सके, ठीक है? तो बच्चा नॉन वर्बल है, ही डोंट से एप्पल. आई से एप्पल, ही डोंट से, ही जस्ट कीप क्वाइट. I again say apple, so he don't say. He is just quiet all the time. So then I was started working on his vocal imitation skill, in which he started saying and he don't say the pearl. He can say he don't say the pearl apple. So he don't say the apple. So he just started saying So whenever I say apple, the child says So that means the child has developed a behavior to imitate you on saying apple. So his a means apple. Okay. So shaping, यहाँ पे shaping का एक टेक्निक आती है जहां पे आप बच्चे के इस बिहेवियर को शेप अप करते हो कि वो ऐसे एप्पल बोल सके, पूरा एक वर्ड बोल सके. ठीक है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं से एप्पल, चाइल्ड से ओ. सही है? वो समटाइम ही कैन से प. आई से एप्पल, ही सेज प. तो ऐसे रिस्पॉन्सेज भी समटाइम आ जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम शेपिंग प्रोसीजर्स यूज करते हैं, जिससे बच्चे के साउंड्स को हम शेप अप करके उसको हम कंबाइन करते हैं दूसरे साउंड्स के साथ, एंड देन वो एक होल वर्ड एप्पल बोल सके. ठीक है? तो उसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है शेपिंग प्रोसीजर में एक अहम रोल प्ले करता है. इसमें आपने देखना होता है कि इसमें आप reinforcement को stop कर रहे हो, because in ABA session when you are running the DTT or you are working in the naturalistic setting, you always present the reinforcement on the good behaviors, on the positive behaviors. When they give you any response, like if I say apple and he says so I give him the reinforcement on saying even though he is not saying apple. Okay, I am giving him the reinforcement because I want him to say every time when I say apple, so he says he must say when I say apple. So I am giving him the reinforcement. I am reinforcing his behavior. So when I see that now 80 to 100%, the child started saying when I say apple, he says the score is 80 to 100%. Like his response rate is like 80 to 100%. Then I decided that I will stop reinforcing the behavior. Now this time he must say app. Then I will give him the reinforcement. The procedure to stop the reinforcement, to motivate the child to step up, to add a pa sound with the sound. Then we start giving the reinforcement again. But stopping the reinforcement and motivating the child to say pa, then when the child started saying pa, then we give the reinforcement. This procedure is called successive approximation, because अगर हम एक ही बिहेवियर को एक लंबे अरसे तक reinforce करते रहेंगे तो वो बिहेवियर स्ट्रांग हो जाता है. फिर उसको हम चेंज करना हमारे लिए मुश्किल होता है. इसलिए हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर तो बच्चा 80 to 100% टाइम बच्चा से एप्पल, तो ही स्टार्टेड सेइंग तो हम एक रिस्पॉन्स उसका 80 to 100% आ रहा है, तो हम वहां पे रीइंफोर्समेंट को ब्लॉक करते हैं, स्टॉप कर देते हैं. हम और ज्यादा उस बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करेंगे until unless he started saying app. So when he starts saying app, देन हम उसको रीइंफोर्स करना शुरू कर देंगे. फिर हम देखेंगे जब इसका जो रिस्पॉन्स रेट है एप्पा का, ही स्टार्टेड सेइंग एप्पा, हम वहां पे रीइंफोर्समेंट को स्टॉप कर देंगे. फिर से वी आर नॉट गिविंग हिम द रीइंफोर्समेंट अंटिल अनलेस ही स्टार्टेड सेइंग एप्पा. ल का साउंड बीच में ऐड करें. ठीक है? एप्पा ल, एप्पा ल, एप्पा ल, 3 साउंड्स आ रहे हैं ना. इसी तरह से हम रीइंफोर्समेंट को हम ब्लॉक रखेंगे until unless the child says apple, apple.
ठीक है, थर्ड साउंड ऐड होगा तो फिर हम रीइंफोर्समेंट को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम रीइंफोर्समेंट को ब्लॉक रखेंगे. वी आर नॉट गिविंग हिम द रीइंफोर्समेंट ऑन app we are not giving him until unless he says apple. This is called the shaping procedure, and this is also called the successive approximation in the shaping procedure. Okay, the general rule is that you are reinforcing any behavior that is closer approximation of the target behavior. अब हमें हमें कब पता चलेगा कि हमने शेपिंग कब स्टार्ट करनी है? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोई वोकल रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं करता, तो आप तब तक शेपिंग प्रोसीजर नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक कि जो हमारा टर्मिनल गोल है उससे उससे मिलता जुलता, उससे करीबी जो क्लोजर एक टारगेट बिहेवियर जनरेट नहीं करता बच्चा. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप उसको शेपिंग प्रोसीजर करवाना चाह रहे हो और आप कहना चाह रहे हो कि वो एप्पल कहे लेकिन वो आ भी नहीं बोल पा रहा, ठीक है, तो यू कैन नॉट स्टार्ट the successive approximation, or you can start the shaping procedure. So you must have the closure behavior to the terminal behavior. Like जो बिल्कुल अगर वो ओ भी बोल रहा है दैट्स फाइन, एटलीस्ट वो कोई ना कोई वर्बल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है. ठीक है, ओ भी बोल रहा है तो ओ आ इसमें थोड़ी सी जो है ना इसमें सिमिलैरिटी है, ये फैमिलियर है ओ आ, क्योंकि इसमें दोनों जो साउंड्स हैं वो बाइलेबियल नहीं है, इसमें हम लिप्स को ओपन करके जो है वो साउंड निकाल रहे हैं. तो हम ओ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमने एप्पल बुलवाना है. तो अगर वो क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट बिहेवियर नहीं है बच्चे के अंदर तो हम शेपिंग प्रोसीजर नहीं कर सकते. ठीक है, इफ अ न्यू अप्रोक्सीमेशन डज नॉट अकर यू रीइंफोर्स द लास्ट अप्रोक्सीमेशन अगेन. अगर तो एक लंबे अरसे तक आप करते रहो और यू आर नॉट गिविंग द रीइंफोर्समेंट, उससे ये होगा नुकसान कि आपका जो है वो बच्चा जो वर्बल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था जब आप कह रहे थे से एप्पल और वो आ कर रहा था, तो वो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी आ के ऊपर एक लंबे अरसे तक, तो वो आ कहना भी बंद कर देगा. तो इसलिए जरूरी है कि आप देखो कि आपने बहुत काम किया बच्चे के ऊपर, आप उसको कह रहे हैं कि एप बोलो, एप प साउंड ऐड करो, वो नहीं कर पा रहा प साउंड ऐड, तो देन आप देखते हो कि कहीं ये बिहेवियर आ वाला बिहेवियर जो है वो भी खत्म ना हो जाए, बिकॉज वी आर नॉट रीइंफोर्सिंग आ बिहेवियर एनी मोर. सो वो बिहेवियर रिग्रेस हो सकता है, तो हम उस आ बिहेवियर को भी रीइंफोर्स करेंगे. ठीक है, जब हम देख लें कि एक सर्टेन लिमिट के बाद यहां पे आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि अगर मैंने आ बिहेवियर को और ज्यादा रीइंफोर्स नहीं किया और मैं एप्पा के लिए वेट कर रहा हूं और उसको बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूं कि आ के साथ वो प का साउंड ऐड करे, तो आप देखते हो कि नहीं हो पा रहा, तो फिर आप वापस आ साउंड को रीइंफोर्स करना शुरू कर देते हो ताकि वो बिहेवियर रिग्रेस ना हो. If an approximation is repeated and reinforced 3 times, you can withhold reinforcement the next time the behavior appears. Okay, so for example, if you wanted a client to say ball, you would first reinforce the b sound. Once the child had mastered the b sound, you would reinforce the ba, and then and finally reinforcing the ball sound. Okay, so this is how we do the shaping procedure. We use the shaping strategy in the verbal responses, and we also use the shaping procedures in the motor actions. Okay, so we can use shaping in any kind of behaviors. So, but the most important thing is the successive approximation. The strategy, the skill to withhold the reinforcement and then starting the reinforcement again, withholding starting. This is the point जहां पे आपको मास्टर होने की जरूरत है. और आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना की जरूरत है कि अगर आपने रीइंफोर्समेंट को विथहोल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है, और आप उसको रीइंफोर्स नहीं कर रहे आ बिहेवियर के ऊपर, तो वो रिग्रेस भी हो सकता है. कीप दिस थिंग इन माइंड. सो अंटिल अनलेस आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि ये पा साउंड को नहीं ज्वाइन कर पा रहा, तो अगेन स्टार्ट giving him reinforcement on the a sound, only a sound. Okay, so just be careful while you are using the shaping procedure. Be careful about the approximation, successive approximation, and the regression point.
ओके, सो दिस इज अ शेपिंग स्ट्रेटजी। सो टोकन इकोनॉमी की बात चल रही थी, तो सर अब्बास ने बताया टोकन इकोनॉमी हम यूज करते हैं एक रिस्पॉन्सेज के बाद, सर्टन रिस्पॉन्सेज के बाद हम बच्चे को रिवॉर्ड करते हैं। बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद लाइक with my experience that how I use the token economy. When I was doing the group sessions in the CMH hospital, we also use the token economy strategies with the adult client also. I was in the CMH hospital Lahore where we used to conduct the group sessions in the indoor patient जितने भी होते थे वार्ड में, उसके वीक में एक दिन जो है हमारी ग्रुप सेशंस हुआ करते थे उन लोगों के साथ। तो उस ग्रुप सेशन में हमने टोकन इकोनॉमी जो है वो उनको स्ट्रेटेजी पूरे वार्ड को जो है, जो साइकेट्री वार्ड था, तो उसमें हमने टोकन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया हुआ था। ठीक है, पहले मैं वो सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ वी डिड दिस एंड हाउ यू गाइस कैन डू इट विद ऑटिस्टिक किड्स। ओके, सो उसमें ये था कि हमने एक जो है कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोकन इकोनॉमी में। कॉन्टीजेंसी कॉन्टीजेंसी होता क्या है? व्हाट इज कॉन्टीजेंसी? कॉन्टीजेंसी इज लाइक, यार अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। वो जो लाफुलनेस होता है ना, एक कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लाफुल और द कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होगा फिर, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक वार्ड में 20-25 लोग जो हैं वो एडमिट हैं और वहां पे हम टोकन इकोनॉमी यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये था कि अगर तुम सुबह 7 बजे उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, नमाज वगैरह अगर अर्ली उठ जाते हो, नमाज पढ़ लेते हो, तो इसका एक टोकन मिलेगा। अगर उसके बाद तुम वार्ड के अंदर ही तुम वॉक करते हो तो तुम्हें एक टोकन मिलेगा। अगर तुम साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐड कर लेते हो और अपना बेड सेट करते हो और क्लीन करते हो अपना बेड सारा, जो मैस अप बिखरा हुआ है इधर उधर टेबल के ऊपर, वो आप सेट करते हो तो उसका आपको एक टोकन मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर आप जो वार्ड के वार्ड बॉयज हैं जो वहां पे केयर टेकर होते हैं सब पेशेंट्स के, अगर उनके साथ आप अच्छा बिहेव करते हो, उनके कहने के ऊपर आप मेडिसिन वगैरह टाइमली ले लेते हो, ठीक है, आप खाना वगैरह अच्छे से करते हो, कोई मैस अप क्रिएट नहीं करते, तो उनके साथ फुली कॉपरेट करते हो, तो आपको एक टोकन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा दिन जो हमने उनकी एक्टिविटी स्केड्यूल की थी, तो सो दोज एक्टिविटी और कॉल्ड द कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो एक चार्ट बना के हमने लगाया हुआ था वार्ड के अंदर। तो इसमें से कुछ बिहेवियर्स को हम 2 टोकन भी दे रहे थे। ठीक है, उस एक बिहेवियर के ऊपर, एक रिस्पॉन्स के ऊपर हम 2 टोकन दे रहे थे एक की बजाय। उसका फायदा ये होता है कि जो आपको लगता है कि ऐसे बिहेवियर जो दोज आर डिफिकल्ट टू अडॉप्ट, तो उस सिचुएशन में हम फिर रीइंफोर्समेंट लेवल को बढ़ा देते हैं, वहां पर फिर 2 टोकन उस बंदे को मिलते हैं। ठीक है, सो ये एक चार्ट पूरा एक वार्ड के अंदर लगा हुआ था, जिससे कोई भी जो पेशेंट था इंडोर, तो वो देख के तो अपने टोकन जो है वो ले सकता था। ठीक है, जी आप मिस कह रही थी कुछ, बताएं। सर इसको हम रिवॉर्ड कह सकते हैं, मतलब एज अ रिवॉर्ड? हाँ, ये सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं, रिवॉर्ड। तो टोकन इज इज सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, बट इसकी अपनी कोई टोकन की वैल्यू नहीं है। बट इसके एक्सचेंज में जो है वो आप कोई अपनी पसंद की चीज जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें फिर आप ये कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के बाद आप उनको गाइड करते हो कि दिस इज अ कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इसको किस किस तरह से आपने फॉलो करना है। फिर उसके बाद जो है आप टोकन्स अपने रेडी करते हो, टोकन बोर्ड रेडी करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो पेशेंट, हमने ये रिवॉर्ड रखे हुए थे कि अगर तो आप जो है 3 टोकन इकट्ठे कर लेते हो वीक के अंदर या डे के अंदर, वो हिसाब किताब रखना पड़ता था। तो उसमें समोसा आपको मिलेगा, समोसा चाट मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी आपको साथ। अगर इतने टोकन होते हैं तो आपको जूस मिलेगा, इतने टोकन होते हैं तो आपको जो है घर कॉल करने के लिए हम परमिट करेंगे ना। तो कॉल मोस्टली जो है सबसे जो हैवीएस्ट जिसके लिए उनको पे करना पड़ता था, ज्यादा टोकन इकट्ठे करने पड़ते थे, वो घर पे कॉल करने के लिए। बिकॉज वो हमने इस वजह से घर पे कॉल करने पे ज्यादा टोकन रखे हुए थे, लाइक जिसमें उन्हें 7 से 8 टोकन इकट्ठे करने पड़ते थे एक पर्सन को, अगर घर पे उसने कॉल करनी है।
तो बिकॉज वो इंडोर पेशेंट से तो उनके फैमिली मेंबर्स तो होते नहीं है वहां पे, तो वो उनको एडमिट करवा के तो वो चले जाते हैं। पूरा मंथ जो है वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो है वहां पे वार्ड में वो उन्हें एडमिट रहना पड़ता था। और कभी कभार जो है घर वाले उनसे विजिट करने आ जाते होते थे, तो कभी उनके लिए खाना ले आई या इस तरह की। बाकी उनके उनको मोबाइल फोन यूज करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी साइकेट्री वार्ड में, तो वो फुली कट ऑफ थे। एक तरह की जेल टाइप, आप इस तरह से अंदाजा लगा ले। उस वार्ड का इन्वायरमेंट ऐसा होता था कि जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो अपने सिपाहियों को, अपने नौजवानों को जो है वो पनिशमेंट के तौर पे भी साइकेट्री डिपार्टमेंट में एडमिट करवा देते थे। ठीक है, इस हद तक वो जो है लॉनलीनेस और आउट ऑफ सोशल सर्कल वो हो जाते थे, कि वो उनको एज अ पनिशमेंट भी जो है वो साइकेट्री डिपार्टमेंट में एडमिट करवा देते थे। तो वो क्या है फिर ऐसे? घर पे कॉल करने पे हमने फिर ज्यादा टोकन रखे हुए थे। तो इसी तरह आप जो है अपनी कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, और फिर टोकन्स बना सकते हो, टोकन बोर्ड बना सकते हो। अपने पेशेंट को जो है, अपने क्लाइंट को उस चीज पे पहले आपको ट्रेन करना पड़ता है। इफ यू से दैट उसको, बिकॉज ऑटिस्टिक किड्स डोंट अंडरस्टैंड दैट इस टोकन का मतलब क्या, राइट? सो यू कैन ओनली यूज अ टोकन इकोनॉमी ऑन द इंटेलेक्चुअल ऑटिस्टिक किड्स, जिनकी इंटेलेक्चुअलिटी है या जिनको कुछ अंडरस्टैंडिंग है। आप उनको कंसेप्ट दे सकते हो कि टोकन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, माइनर ऑटिस्टिक किड्स के साथ उनके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। मोस्टली घर पे जो प्रॉब्लम बिहेवियर आते हैं, बच्चे पेरेंट्स पेरेंट्स को तंग करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है उनकी डेली रूटीन को सेट करने के लिए, तो उसके लिए भी टोकन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। एक पेशेंट पे मुझे याद है, ही वाज, आई डोंट थिंक सो ही इज ऑटिस्टिक, बट ही वाज हैविंग लाइक लैंग्वेज बैरियर्स। उसकी बोलता था, हर चीज डिस्कस करता था, डिस्कशन थी उसके अंदर, बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता था, लेकिन कुछ बिहेवियर इश्यूज थे लाइक स्पिटिंग टाइप, अग्रेसिव बिहेवियर, आवाज ऊंचे ऊंचा करके बोलना उसने, इस तरह की काफी इश्यूज आ रहे थे उसके पेरेंट्स को घर पे। तो देन आई इम्प्लीमेंटेड द टोकन इकोनॉमी, और घर पे वो पूरे इम्प्लीमेंट किया हमने। अगर तुम स्पेट नहीं करोगे पूरा दिन, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे, अगर तुम अपने आवाज के वॉल्यूम को कम रखोगे, पेरेंट्स के साथ बात करते हुए बदतमीजी नहीं करोगे, रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे। उसके अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा थी, तो रेजिस्टेंस शो नहीं करोगे तो यू विल गेट दीज टोकन्स। सो आफ्टर लाइक एट द एंड ऑफ द डे, if you have 2 3 tokens you can get this, if you have 5 tokens you can get this, if you have 6 tokens you can get this। तो इस तरह से उस बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छे से मैनेज हुआ हुआ था। तो दिस इज हाउ यू गाइज कैन मैनेज योर टोकन इकोनॉमी। बट उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि यू हैव टू ट्रेन द चाइल्ड बिफोर यू हैंड ओवर दिस स्ट्रेटजी टू द पेरेंट्स। बिकॉज पेरेंट्स जो है उसको कंसेप्ट नहीं दे सकते, पेरेंट्स जस्ट उसको यूज कर सकते हैं टोकन इकोनॉमी को। बट टोकन्स का रोल क्या है, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बच्चे को देना, वो पहले आपने ट्रेन करना है बच्चे को उस चीज में। ठीक है, ट्रेन करने के बाद ही आप पेरेंट्स को कह सकते हैं कि अब ये स्ट्रेटजी, देन इफ यू नो दैट कि बच्चा जो है रेडी है अब टोकन इकोनॉमी को रन करने के लिए इंडिपेंडेंटली घर पे, तो फिर आप जो है पेरेंट्स को घर पे इम्प्लीमेंट करने की परमिशन दे देते हैं कि नाउ यू गाइस कैन इम्प्लीमेंट द टोकन इकोनॉमी एट होम एज वेल। सो अच्छा, इसमें एक और डाइवर्स इफेक्ट भी होता है। अगर तो बच्चा जो है कोई प्रॉब्लम बिहेवियर करता है तो हम उसका टोकन उसे वापस ले भी लेते हैं। ठीक है, एज अ पनिशमेंट। ये एक पनिशमेंट की स्ट्रेटेजी, गुड बिहेवियर पे हम दे भी सकते हैं, और बैड बिहेवियर पे हम टोकन वापस ले भी सकते हैं बच्चे से। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द शेपिंग प्रोसीजर और द टोकन इकोनॉमी? Sir, I have a question regarding token economy. जी सर। हाँ सर, जैसे कि आपने बात की है कि मतलब कुछ आर्टिस्टिक बच्चे हैं, जब तक उनको कॉन्सेप्ट नहीं, तो क्या हम उनको विजुअलाइजेशन के थ्रू दे सकते हैं कॉन्सेप्ट? विजुअलाइजेशन मींस? लेट्स सपोज अगर हमारे पास व्हाइट बोर्ड है तो हम उस पर टोकन रखते हैं कि अगर आपके 5 करेक्ट रिस्पॉन्सेज है या आपने बिहेवियर शो नहीं किया तो आपको टिक मिलेगा, तो उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना जो मतलब हमारे पास वर्बल नहीं है तो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, लेकिन वो उनकी विजुअलाइजेशन अच्छी है।
हाँ बिल्कुल, हम यूज कर सकते हैं उनको, हम मॉडल करके बता सकते हैं कि दिस इज हाउ यू गाइस कैन कलेक्ट द टोकन्स, और इसका आपको ये फायदा होगा, आप पिक्चर्स रीइंफोर्सर्स की लगा सकते हो टोकन बोर्ड के आगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लगाई थी, लेट मी शो यू एन एग्जांपल हियर। Like this. Just let me share the screen. Okay, you guys can use these visuals. So here I am working for the popcorn. आप यहाँ पे बच्चे की कोई भी फेवरेट चीज लगा सकते हो, अगर उसको पॉपकॉर्न पसंद है, अगर उसको बाहर जाना है तो उसकी पिक्चर लगा लो, उसको आइसक्रीम चाहिए, आई एम वर्किंग फॉर दिस एंड दैट। अगर उसको पहले से ही पता होगा कि मैं इस चीज के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है टोकन कलेक्ट करने के लिए। तो व्हेन ही विल सी द बोर्ड दैट यहाँ पे 3 टोकन मैंने इकट्ठे कर लिए और ये लेने के लिए मुझे 2 टोकन और चाहिए, तो वो और हार्ड वर्क करेगा इन 2 टोकन्स को कंप्लीट करने के लिए। So Yes, we sir. can use the visuals also. So these are the examples of token board you guys can use in your session. This is also a token board you can use like this, like जिसमें बच्चे थोड़े से मोटिवेट भी हो जाएं, ऐसी पिक्चर्स ऐड कर दो उसमें टोकन बोर्ड में, तो ताकि बच्चे मोटिवेशनली जो है वो वर्क कर सकें। अरे इसमें सबसे पहले आपको जो है वो पता होना चाहिए कि बच्चे के रीइंफोर्सर्स क्या क्या है। जब आप यहाँ पे आई एम वर्किंग फॉर लगाते हो, आप बच्चे से भी पूछ सकते हो उसकी प्रेफरेंस क्या, वो क्या चाह रहा है, या आपको अगर पेरेंट्स से डिस्कशन करने के बाद आप उनकी उसकी बच्चे की प्रेफरेंस है जिस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा जो है कुछ भी कर सकता है, तो वो फिर आप उन एक्टिविटीज की या उन रीइंफोर्सर्स की पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो टोकन बोर्ड के ऊपर। This is also very helpful. Okay. क्या कहा आपने बेटा? सर ये हम ADHD के बच्चों पर कर सकते हैं? ADHD के बच्चों पे कर सकते हैं, बट दे आर लाइक बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं ना, दे आर वेरी लाइक डिस्ट्रैक्टिव, और उनमें हाइपरनेस सर। बहुत ज्यादा होती है। अगर तो स्वेयर है वी कैन यूज इट, बिकॉज वो इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, उनकी अटेंशन ही इतनी बेहतर नहीं होगी या अटेंटिव नहीं होंगे व्हाइल वी आर मेकिंग देम लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो एडीए हाइपर एक्टिविटी उनमें बहुत ज्यादा, दे डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक सो स्वेयर किस्म के एडीएचडी पे तो नहीं कर सकते। अगर माइनर है, कुछ अटेंशन डेफिशिएंसी है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप कुछ किसी हद तक कर सकते हो। अगर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा, फिर आपको करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो आपकी बात नहीं सुनते। बिल्कुल सर, सर लेकिन लेकिन क्या माइनर है लेकिन उसकी माइनर इश्यूज के हाइपर साथ बच्चे हैं तो उनपे आप कर सकते हो। इसकी सबसे सर जो लिमिटेशन ही यही है कि आप जो है स्वेयर इश्यूज वाले बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते। ठीक है सर। हाँ सर अगर थ्रू आउट विजुअलाइजेशन के जरिए हम अप्लाई करें तो माइट बी हेल्पफुल हेल्पफुल हो सकते हैं। एवरी हाँ टारगेट के बाद या एवरी टोकन के बाद हम उसको अगेन रियलाइज करवाएं कि आपके 2 टोकन रह गए, देन आपको रिवार्ड मिलेगा, 1 रह गया देन मिलेगा, तो इस तरह से माइट बी हेल्पफुल। हाँ हो सकते हैं हेल्पफुल। अडॉप्टेशन प्रोसीजर ऑलवेज देयर, थेरेपिस्ट कर सकता है खुद से
चेंजेस उसको करवाने टोकन इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने पे, जैसे आप करवा रहे हैं, हम उसको मेमोराइज करते रहे, बार बार दोबारा बात बताते रहे हर टोकन के बाद, तो ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है. वी कैन डू दैट, बट समटाइम इट्स डिफिकल्ट, बट वी कैन डू इट. डिफिकल्ट तो है बट इम्प्लीमेंटेबल है. ओके या सर, उनकी वर्बल हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना, तो मैं कह रही थी कि अगर वो मैं उसको टास्क देती हूँ कि वो 5 मिनट खामोश है या 10 मिनट खामोश है, तो फिर मैं उसको रिवॉर्ड दूँ. जी जी बिल्कुल, हम इस चीज पे भी काम कर सकते हैं कि वो खामोश रहे, तो वी मेक हिम अंडरस्टैंड. अगर तुम चुप रहते हो तो वो हम आपको ये देंगे रिवॉर्ड एज अ टोकन. फिर इतने टोकन इकट्ठे कर लोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपना पसंद का रीइंफोर्सर ले सकता है. हाँ सर, उसमें एक स्ट्रेटजी हम ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा वोकल है और वोकल उसकी इमिटेशन ज्यादा है, तो देन हम उसको ये कर सकते हैं कि अगर बच्चे को 1 मिनट हमने 30 सेकंड से स्टार्ट कर दें या 10 सेकंड से ना, तो अगर उसके 2 टोकन हो गए, देन वो वोकल इमिटेट कर रहा है, तो देन हम उसका 1 माइनस कर देंगे ना, तो मतलब एज अ पनिशमेंट उसके लिए चलेगा. हाँ अगर हाँ वो नहीं यार अब बिल्कुल मैं बोलूंगा तो मेरा सेकंड, तो देन मुझे रिवार्ड नहीं मिलेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. तो हम पनिशमेंट के लिए एक टोकन रिमूव भी कर सकते हैं. अगर वो इंस्ट्रक्शंस को, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, तो ही कैन गेट पनिश्ड बाय Yes. रिमूविंग द टोकन. उसके लिए हम जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बेटर ये है कि अगर हम व्हाइट बोर्ड पे उसके लिए 10 वो टोकन रखेंगे, मतलब आपके 10 कंसेक्टिव रिस्पॉन्स करेक्ट आ रहे हैं, तो देन आपको देंगे. तो उसमें अगर वो 2 उसके करेक्ट आते हैं, देन वो अगेन इमिटेट कर रहा है, तो देन हम उसके 1 या 2 उसको माइनस में कर देंगे. हाँ हाँ तो इट बिल्कुल. इज अ क्वाइट बेटर. यस, ये कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना, तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आप ये बिहेवियर करते हो तो आपके इस बिहेवियर के ऊपर एक टोकन रिमूव होगा, इस बिहेवियर पे 2 टोकन रिमूव होंगे. जैसे मैंने बताया था ना कि इन बिहेवियर्स पे, गुड बिहेवियर्स पे 1 टोकन ऐड होगा, इन गुड बिहेवियर्स के ऊपर 2 टोकन ऐड हो सकते हैं. तो इसी तरह से हम जो है बैड बिहेवियर्स का भी मेंशन कर सकते हैं. इस बैड बिहेवियर पे आपके 2 टोकन रिमूव हो सकते हैं, इस बैड बिहेवियर पे आपका 1 टोकन रिमूव हो सकता है एज अ पनिशमेंट. ठीक है. ओके, अभी जो है हम डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियर रिडक्शन को. बिहेवियर रिडक्शन, आपको अभी तक अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग. वी आर वी आर स्टडिंग द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ एबीए, जिसमें हमने पहले बिहेवियर को इंक्रीज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन वर्क ऑन द बिहेवियर टू इंक्रीज द रिस्पॉन्सेज ऑफ द चाइल्ड, टू इंक्रीज द स्किल्स. वो जितनी भी स्ट्रेटजीज जो बिहेवियर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, पहले हमने वो स्टडी की थी, राइट? तो अभी जो है हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए यूज हो सकती हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. Okay, let's look into the identifying the essential components of behavior intervention plan और behavior reduction plan. एक behavior reduction plan के में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. एक तो सबसे पहले आप देख लें कि ऑपरेशनल डेफिनेशन बिहेवियर रिडक्शन प्लान में होनी चाहिए. फिर फंक्शन ऑफ बिहेवियर क्या है वो आप अपने प्लान में जरूर बताते हो. एंटीसीडेंट स्ट्रेटजीज आप बताते हो, रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स बताते हो, कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेटजी बताते हो. एट देन पीपल रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हो सकते हैं इस बिहेवियर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो इमरजेंसी मेजर्स हैं कि इन केस अगर कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं तो देन व्हाट टू डू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू अ बिहेवियर प्लान.